Hello everyone, welcome to the class. Now today we are going to start new chapter of the partnership accounts, that is nature and valuation of goodwill. Now before starting this chapter, let us first understand what is goodwill. Goodwill होती क्या है? Let's take an example. A purchased a business worth rupees 20 lakhs for rupees 30 lakhs from B. A ने B का बिजनेस परचेज किया है, वर्थ थी बिजनेस की 20 lakhs की, और he is ready to pay 30 lakhs to B. The reason could be, question arises why? क्यों वो 20 लाख के बिजनेस को 30 lakhs में खरीदने के लिए तैयार है? The reason is obvious. Why? Because the business must be enjoying a goodwill. The running business must be enjoying a goodwill. That is why A was ready to purchase a business worth rupees 20 lakh for rupees 30 lakh from B. Reasons for the emergence of goodwill are, गुडविल क्यों आती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या गुडविल क्यों एमर्ज होती है, या अगर हम क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करें कि बायर क्यों रेडी हो जाता है ज्यादा देने के लिए देन द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस. फाइन. सो अ बायर मे बी विलिंग टू पे मोर. ही मे बी willing to pay more for a business as a going concern because of first good location. बिजनेस एक अच्छे लोकेशन पर है, इसलिए जो बायर है वो हायर प्राइस देने के लिए तैयार है. देन द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, गुड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर बेस अच्छा है, कस्टमर मार्केट शेयर आपके बिजनेस का अच्छा है. देन गुड रेप्यूटेशन, आपके बिजनेस की मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी है. वेल नोन प्रोडक्ट, जो बिजनेस प्रोडक्ट सेल करता है दैट हैज गॉट अगेन ग्रेटर मार्केट शेयर, वेल नोन प्रोडक्ट है. business must be having experienced and efficient employees. बेटा experienced और efficient employees किसी भी business के लिए asset होते हैं. तो business के पास experienced और efficient employees हैं और management team है. That is why business is having goodwill in the market. And last but not the least, good relation with the suppliers. business के जो जितने भी सप्लायर्स हैं, जो बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनके बिजनेस के साथ अच्छे रिलेशन है. दैट इज व्हाई द बिजनेस इज एंजॉयिंग गुडविल इन द मार्केट. So the meaning of goodwill is, it is something which is very easy to describe but difficult to define. बहुत इजी है. हम रोजमर्रा के लाइफ में भी गुडविल टर्म को बहुत बार यूज करते हैं. उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है. फाइन. सो इट इज वेरी वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. We can say that it is a benefit or the advantage of the good name, reputation, or connection of a business. Or it's a attractive force which brings in customer. ये ऐसा attractive force है goodwill जो कि customers को business की तरफ लेकर आता है. See, अगर आपके goodwill business की अच्छी है तो आपके जो present customers हैं वो दोबारा repeated purchase के लिए तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपके ब्रांड एम्बेसडर बनकर माउथ कैंपेनिंग भी करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में. सो वी से, here are few definitions of goodwill. Goodwill simply means that old customers will resort to the old place. This is what I was telling you in the previous slide also, कि आपके जो पुराने customers हैं वो दोबारा आपके पास जरूर आएंगे, repeated sales जरूर करेंगे. If the old customer do not patronize the old place, business will almost decline certainly. अगर आपके ओल्ड कस्टमर्स आपके पास दोबारा रिपीट परचेज के लिए नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे विल नॉट प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑल्सो. The another definition for goodwill is the excess of the price paid for a business as a whole over the book value or
over the computed value of all tangible assets. Assets purchased. सी क्या मतलब हुआ कि अगर आपके बिजनेस की नेटवर्थ से ज्यादा कोई पे करने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, एक्सेस प्राइस जो पे कर रहे हैं बिजनेस के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल. Normally, goodwill thus acquired is only one type appearing on the books of accounts and in the financial statements. तो बेटा ऐसा कभी जब होता है, जब बिजनेस को हम परचेज करते हैं और उसकी नेट वर्थ से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो हमारी परचेज गुडविल होती है, और उस परचेज गुडविल को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट, इनटेंजिबल एसेट शो करते हैं. अब बेटा जो लास्ट डेफिनेशन में लास्ट लाइन कही गई है उसको एक बार ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अगर ए ने बिजनेस परचेज किया है बी से जिसकी वर्थ 20 lakhs है फॉर रुपीज 30 lakhs, तो बेटा जो 10 lakh ए एक्स्ट्रा पे कर रहा है बी को, तो दैट इज फॉर दी गुडविल. तो जो परचेजर है ए, वो 10 लाख की गुडविल एज एन एसेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट शो करेगा. आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें बैलेंस शीट में 10 लाख की इंटेंजिबल एसेट गुडविल ए यानी कि हमारा परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगा. I think that the last definition, the meaning of the last definition is clear now. Now let us understand and discuss the characteristics of goodwill. Goodwill हम सबको पता है, it's an intangible asset. It cannot be seen. It can be felt. We can feel the presence of goodwill. अभी हमने देखा था कैसे अगर हमारा बिजनेस अच्छी लोकेशन पे है, हमारा मार्केट शेयर बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारे रिलेशन विद द कस्टमर्स आर गुड, सप्लायर्स आर गुड, सो यस वी कैन फील इट्स प्रेजेंट. इट कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली, even then it is very much real. It is a valuable asset. It is helpful in earning excess profit. अगर हमारी गुडविल अच्छी है बिजनेस की तो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. इट इज वैल्यूएबल व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. जब बिजनेस सेल होता है तभी हम परचेज गुडविल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं. अदरवाइज हम गुडविल को वैल्यू तो कर सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं कर सकते. गुडविल तभी वैल्यू होगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होगी जब हमारा बिजनेस सेल हो जाता है. इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस. गुडविल कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. और अभी हम जब चैप्टर में we will learn various methods of valuation of goodwill, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड से गुडविल की वैल्यू डिफरेंट आती है. गुडविल जो है एक सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होती है उसकी. एक फिक्स्ड आप वैल्यू गुडविल को नहीं दे सकते. फाइन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट इज परचेज गुडविल. जब बिजनेस आपका सेल होता है या परचेज, बिजनेस की सेल या परचेज होती है, तो उस टाइम पर जब आप एक्सेस अमाउंट पे करते हो देन द नेट वर्थ ऑफ द एसेट, तो यू आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द गुडविल. सो दैट परचेज गुडविल कम and it is shown in the balance sheet on the asset side in the books of accounts of the purchaser. Fine. So that is purchase goodwill. The other is self-generated goodwill.
Now we are going to learn about both these types of goodwill in our next class. I hope the meaning, the definitions, and the characteristics of goodwill is clear to everyone. Hope all of you have enjoyed the session today. That's all for today from my side. Thank you very much.